वी आर इनटू द यूनिट 2. हाँ, यूनिट 2 में क्या क्या है? व्हाट इज द कंटेंट ऑफ यूनिट 2? यूनिट 2 means current electricity. So 2.1 was all basic laws which I have written into the integral as well as differential forms. And then we have also done self-induction and mutual induction. Then in the last class I have started with the circuit analysis. And in circuit analysis, what was the first thing? What source? क्लास में भी सबसे पहले बिना टीचर के कोई क्लास हो सकती है क्या? सबसे पहले टीचर है, उसके बाद स्टूडेंट है, उल्टा नहीं होता है. गुड. तो टीचर क्या है? सोर्स. सो सोर्स होना चाहिए पहले. सोर्स. तो सोर्स ऑफ ईएमएफ. इफ इज ए स्टडी सोर्स, सर्किट इज स्टडी सोर्स, सर्किट डीसी सर्किट. इफ इट इज ए सोर्स इज एसी, देन एसी. सो सोर्स. देन द रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स क्या क्या? रिस्पॉन्स में 3 चीज़ें हैं. पहली करंट है, दूसरी पावर है, तीसरी पावर फैक्टर है. तीनों चीज़ें बताई थी मैंने आपको. पावर फैक्टर किस में इंपॉर्टेंट है? एसी सर्किट्स में इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. देन कंबाइंड. व्हाट इज इम्पीडेंस? इम्पीडेंस इज नथिंग बट द अपोजिशन ऑफर्ड बाय सर्किट एलिमेंट्स. गुड. व्हाट आर सर्किट एलिमेंट्स? सर्किट एलिमेंट्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ आर, एल एंड सी. व्हाट इज इंडक्टर or inductance? Self inductance is called inductance. Inductance is the, by the help of inductance, any coil can have a certain value of inductance. L. कैसे मालूम पड़ता है? What is L? What is L? Phi by I. N pi by I. Flux linked per unit current. 1 ampere current is flowing. Whatever the flux linked, that is the measurement of its coefficient of self inductance. Another thing, another measurement, E is equal to L di by dt. E is equal to L di by dt. Rate of growth of current or decrease or decay of current is 1 ampere per second. Current decreases at the rate of 1 ampere per second. So whatever is induced EMF created, that is the measurement of self-induction. So every coil is having self-inductance. The very same way every coil is having some or the other value of resistance. Correct? Resistance of any coil is what? Rho L by A. Resistance is due to what property? Resistivity. And resistivity is nothing but reciprocal of conductivity. Good. Lower the conductivity, higher will be the resistivity. Resistivity is reflected by a geometrical parameter rho L by A. Good. Resistance of any wire is rho L by A. Rho is the resistivity, property by which flow of charge carrier is opposed. L and A. L is the length, A is the area. Resistance, so circuit element. So what does resistance do? Oppose the flow of current. Exactly same way L and C. Both of them are opposing the flow of current. Correct? So they are called in broadly, what are they called? Impedance. Impedance means opposing to the flow of current. Impedance. Combination of R, L and C. If they are in series, you know how they are added. If they are in parallel, how are they added? You know that. Correct. So quickly, just if there is an L, if there is an L, this is L, this is L, and I connect it with some source. I connect with some source plus minus some source. Why I have said some source? It could be steady source or it could be AC source. What will happen? What will happen? Circuit is complete, closed. ये तो है ना कुछ यहाँ पर, इस जगह है कुछ ना कुछ, इस बॉक्स में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, चाहे सेल हो चाहे ऐसा लगा हो. दिस एसी सोर्स, दिस इज बैटरी, डीसी सोर्स. इसमें क्या है? V इज कांस्टेंट. इसमें क्या है? V0 e रेज़ टू पावर j ओमेगा t और j ओमेगा t प्लस पाई. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V0 इज द मैग्नीट्यूड, ओमेगा t और थीटा इज द फेस. That is also I can, that is AC. So I am not interested. So what will happen? What will happen? Current will flow. Current flows. What is the potential drop across L? इसके across drop क्या होगा? What is EMF generated when the current is changing I? Switch on. When the key will be on, current will grow. Switch off, current will decrease, di by dt will take place. Correct? So due to that, what is the drop? L di by dt होगा ना, minus sign is due to Lenz's law. Otherwise, what is
VL is L di by dt. Correct? If I apply Kirchhoff's law, potential drop across this L di by dt, here is minus V is equal to 0. V is applied. Correct? This is V. I would have very well written L di by dt. इसके क्रॉस ड्रॉप कितना? L di by dt. अब ऐसे घूमे तो इधर क्या आया? माइनस V. V is whatever this V is 0. That is V. L di by dt is V. If it is DC, no problem. If it is DC, di by dt is V. We will write wherever this potential drop across this is same. L di. If it is AC, I can write V0 e raised to power j omega t. DC है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. I will write simply what is the potential drop? L di by dt across this, that is V. Same thing. And if it is AC, V0 e raised to power j omega t. So what is di? What is the current? Because what I have to get? Current. यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था. यहाँ करंट लिख जाती सिंपल di by dt is V by L. V is steady. V is not a function of time. So simply multiplied by t हो जाता है. T is equal to 0. This would have become your 0. यहाँ हो गया di by dt. क्या हो गया यहाँ से? V0 j omega t dt. ठीक है. व्हाट इज करंट? क्या करूं करंट के लिए? इंटीग्रेट. क्या हो गया जी? आई क्या हो गया जी? V0 e रेज़ टू पावर j ओमेगा t और नीचे L भी है. गुड. अपॉन j ओमेगा. 0 से कर रहा हूं समय. आई करंट बिकम्स व्हाट इन एसी सर्किट्स? V0 e रेज़ टू पावर j ओमेगा t अपॉन j ओमेगा L. V0 e raised to power j omega t upon j omega L. क्या याद कर रखा था आपने? करंट क्या है? व्हाट इज करंट? इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V अपॉन Z. करंट क्या बताया आपको मैंने? व्हाट इज I एनीवेयर? I इज नथिंग. V by Z. दिस इज V. V0 e raised to power j omega is V at any point of time is Vt. V0 sin omega t upon omega L. So I could have very well written Z क्या हो गया यहाँ पर? Z due to this is j omega L. If the circuit is purely inductive, only inductance is there in the circuit. Z is called j omega L. J omega L is also called XL. Good. Reactive inductance. Z impedance. Here is only due to inductance. Reactance also I can call j omega L. In DC में क्या हो जाएगा? What is omega for DC? Omega is the frequency. Frequency means what? How many times it changes its sign. Good. Does DC change its sign? No, DC does not change. For DC omega is 0. So for DC Z will become 0. Good. DC. So only for AC I will write. अब ये समझने की कोशिश करिए. ये डिफाइन कर दिया तो कुछ नहीं लिखना है. V by Z and Z due to L. Z due to L whenever I use AC is equal to j omega L. And what was J? E raised to power j theta was what? E raised to power j theta क्या है? ये फार्मूला है. What is E raised to power j theta? Cos theta plus j sin theta. E raised to power j pi by 2 rotation. Theta means rotation by theta. It is simply your j. करेक्ट. तो j जो लिखा हुआ है इसको लिख दूं ओमेगा L e raised to power j pi by 2. लिख दूं कि नहीं लिख दूं? क्या हो गया जी? V0 by ओमेगा L. करंट कितनी है? V0 by ओमेगा L e raised to power j ओमेगा t minus pi by 2. करेक्ट. V कितना था? V0 e raised to power j ओमेगा t रेफरेंस लेवल है. करंट कितनी है? j ओमेगा t minus pi by 2. Current is lagging by the phase of pi by 2 in purely inductive circuit. Purely inductive circuit. और Z को क्या लिख दिया? j omega L लिख दिया. Which is e raised to power j pi by 2. So if circuit is there, L is there, only L. Then current is lagging by the phase of pi by 2.
और पावर क्या बताई थी मैंने किसी भी सर्किट में आपको, V0 I0 cos phi, यही बताई थी ना, और फाई यहाँ पर कितना हो गया π/2, पावर विल बी 0. दिस इज कॉल्ड, दिस काइंड ऑफ करंट्स आर कॉल्ड वाटरलेस करंट्स विच डज नॉट. प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बाय द फेस. ये सब 12वीं क्लास की चीज़ें हैं, कुछ नहीं है. गुड. और डीसी में सीधे लिख देना तो LdI/dt. डीसी में क्या लिखूंगा, पोटेंशियल इज नथिंग LdI/dt. सिमिलरली इफ इट इज दिस, और ये फिर लगा दिया है, यहाँ पर भी करंट जाएगी. दिस इज C, दिस इज कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C. Why the potential drop across capacitance? When the circuit is complete, current will flow. Current will flow. देखो यहाँ पर अगर DC होता तो यहाँ की लगाई होती, की is closed. When key is closed, current will flow. What I will say? It is charged. Capacitor is getting charged. And when the key is removed, open, it discharged. Capacitance is discharged. Correct? So when it is charged, what will be the potential drop across this, between the terminals of this? Q/C. We will become nothing. Q/C. Q कितना हो गया? What is Q charge? Charge on the capacitor plate. Charge on the capacitor plate is CV. Good. Charge on the capacitor. So whether it is steady then CV. V is constant. Otherwise CV0 e raised to power j omega t. I want to get response. What is the response? Current. What is the current generated? करंट कुछ नहीं हो जाएगा dQ/dt. करंट कितना हो जाएगा dQ/dt. So C characteristic dV/dt. V does not change with respect to time. So in DC doesn't play much role. Correct. In AC में क्या हो जाएगा? AC में क्या हो जाएगा? CV0 j omega t. This is the charge. At any instant, Q as a function of time, it will become CV0 e raised to power j omega t. Differentiate. ये हो गया j omega c V0 e raised to power j omega t. It was your applied potential. Whatever the source was there, V0 e raised to power j omega t. So I can very well write V0 e raised to power j omega t upon 1 by j omega. लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? देखो पहली बात देखो यहाँ पर j means π/2. This becomes omega 0 omega c V0 e raised to power j omega t plus π/2. This is your Z due to capacitance, which is called Xc. It is V/Z. Here Z is reactive capacitance, reactance, Xc. Impedance here is due to only capacitance. What is this value? 1 upon j omega c. For DC, it acts like an infinite opposition. V/Z. तो देखो यहाँ से हो गया V0 omega c magnitude, V0 omega c into e raised to power j omega t plus π/2. If the circuit is capacitive, purely capacitance, and AC circuit it is purely capacitance, then current leads by the phase of π/2. So whenever current leads, circuit is predominantly capacitive. Only capacitance, no other element. It is π/2, leading by π/2. If other element, resistance is always there. Every circuit, every coil, because resistivity cannot be 0. Resistivity is 0 only in superconductors. Otherwise, every coil, every wire will have some or the other value of resistivity. If there is a resistivity, coil will have resistance. Resistance cannot be 0. So every coil, whatever is there will be always resistance. Good. So pure inductance and pure capacitance are rarity. But if it is purely capacitive circuit, it is leading by the phase, current leads by the phase of π/2. And if it is something else along with capacitance, then also current will lead, but it is leading by less than π/2. Good. So दोनों को मालूम पड़ गया. Resistance
If it is only resistance, only resistance, only resistance, I is flowing, current is flowing. What is the potential drop across resistance? IR minus V. Minus V is 0. Minus V is 0, that is IR is V. IR is V. I क्या हो गया जी? V by R. DC it is V by R. AC क्या होगा जी? V0 e raised to power j omega t by R. I is V by R. I is V by R. For DC there is no problem. It is always V by R. V is steady. R is also constant. V by R characteristic. That is the current. But if it is AC, then potential is changing every instant. V0 e raised to power j omega t. जब भी मैं लिखूंगा V0 e raised to power j omega t, इस तरीके से है जी. Half of the cycle positive, half of the cycle negative. Every instant potential is different. Good. So if I want to say I at t, I at any t, किसके लिए important है? Only AC. I t is what? VT by Z. Z लिख देते हैं, ये ध्यान रखना. I t is VT by Z. I0 V0 by Z, मतलब I maximum V maximum. तो V0 by R को क्या बोलना चाहिए मुझे? I0. V0 by R is what? I0 e raised to power j omega t. That means both of them are in the same phase. If it is a purely resistive circuit, only resistance is there, no inductance, no capacitance. Both of them are in the same phase, same direction. I and V are same phase. कोई lead है? No lead, no lag. Good. IT is I0 is V0 by Z. I average, V average by Z. I RMS, V RMS by Z. So whatever is V at any instant, IT is VT by Z. They are the three elements. Good enough. Now let us go by series LR circuit in DC. In DC, this is L and this is R. Every coil will have these things. They are connected in series. Series means same current is flowing. This is your bat cell, this is key, this is this. This I connect. This is V is constant. Circuit is closed, I current is flowing. ये सब 12वीं क्लास का कर रहा हूँ. Quickly I am going to just move forward. AC is very simple. LR circuit, series LR circuit. Series LR circuit. Same current is flowing across all of them. Good. So I write VL plus VR is equal to V. नेट लिखता पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R माइनस V इज इक्वल टू 0. सो इट इज VL प्लस VR इज इक्वल टू व्हाट? V. VL कितना है? L di by dt. L di by dt. VR IR is what? V. V is constant. V is constant. निकालना क्या है? निकालना क्या है? I निकालना है करंट. Good. Current. When the circuit is growth, जब कीज closed, current will grow. पहले जीरो होगी शुरू करंट में, then current will increase, grow. Growth of current. So when the key is closed, it is called growth of current. When key is made open, certain current has been built up, and then it will decrease, decay of current. Decay of current when this key is open. When the key is closed, growth of current. A growth है. This growth of current. How current grows? Current as a function of time. Good. At the time of switch on or switch off. कब है? Switch on. Key is closed. Switch on. At that instant I am trying to get the response. That is why these kind of responses are called transient response. Response at the time of switch on. Current will grow and will build up the certain value.
How, what times it takes in becoming a certain maximum value or saturation value at that time. Because so at the time of switch on or switch off, here current is not changing at every instant. I have preset it is not an AC. AC is changing at every instant. Half of the cycle, even direction is changed. Half of the cycle possible. The steady response, steady current. So here at what time I am taking this response? At the time of switch on. First case, growth of current means switch on. When the then current, whatever the maximum value of the peak value of the current or saturation value of the current, that doesn't happen immediately. It takes some time. How that grows, that is what we are studying. So एक G, nothing. L di by dt is V minus IR. di by V minus IR क्या हो गया जी भैया? dt by L हो गया कि नहीं? वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन. di upon v, देखो v is constant, r is constant, only variable is I. So I can assume v minus IR is x और t जो भी लेना चाहो. v minus IR is x. v minus IR is x. तो क्या हो गया जी? माइनस r di is dx. So di हो गया योर, क्या हो गया? dx by योर r माइनस 1 by r. और ये क्या हो गया? x हो गया कि नहीं? डायरेक्ट लिख देता मैं. इट इज व्हाट? t by l. इधर हो गया t by l प्लस कांस्टेंट प्लस क्या? c1. वेरिएबल सेपरेबल हैज बीन रिटन. सो इट इज ln x माइनस 1 बाई आर. ln x, x कितना? v माइनस आई आर इज t बाई l. और r से अगर मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो क्या हो गया जी? माइनस आर टी बाई एल एंड माइनस आर सी वन. यही है जी. आप रिटर्न just integrated. Now what is the boundary condition? I can take C. It was an indefinite integral, so I have written the differential equation has been worked out. First order differential equation, only one boundary condition I have obtained. Current is obtained from here, type of preset. So what is the, at t is equal to 0. Initially what was the current? 0. At t is equal to 0, I can take I0. If I take I0, then what it becomes? ln V is minus R C1. So it is nothing. माइनस ln V बाई R1. तो देखिए भैया ये क्या हो गया? RC1 क्या हो गया? प्लस ln V हो गया. RC1 क्या हो गया? प्लस ln V. I have written the with the boundary condition plus ln V. I bring this side, it becomes V minus IR upon V. ln is equal to minus RT by L. What? Remove this. 1 minus IR by V is nothing, e raised to power minus RT by L. So what it becomes? I becomes V by R, 1 minus e raised to power RT by L. Correct? Current becomes current at any point of time. This is IT. Current becomes V by R, 1 minus e raised to power minus RT by L. What is the maximum value of current? V by R. And when it becomes maximum value? Whenever t is equal to infinity. Whenever, if I put t is equal to infinity, this will become minus infinity 0 is V by R. V by R is the maximum value of current. It is I max. This is I max, which I can say I0. I0 is 1 minus e raised to power RT by L. I0 is I max. It is nothing, V by R.
So how the current grows? Try to appreciate. How it grows. This is T. This is I. T is equal to 0, current is 0. And after infinite time, very long time, it becomes I0. What is the value? V by R. This value is V by R. I0 is V by R. This value. And it becomes steady state. This is steady state. So maximum value of current is V by R, which is also steady state value. Steady state. Good. Fixes. Current becomes V by R. It takes long time. It doesn't become V by R immediately. It takes much longer time in becoming this. Good. This time when the current becomes 0.63%, 63% of the maximum current, that time is called relaxation time. Time constant of the circuit. Here that I will call time constant. Time constant. Time constant tau is that time current is growing here. When it becomes 63% of the maximum value. Growth of current. So I at T, that T I will call tau when it becomes 63% of I0. 1 minus e raised to power R tau by L is equal to 0.63. 0.60 होता है 1 minus 1 by E. ये ध्यान रख लीजिए. I naught कट गया दोनों साइड. It becomes और 0.63. 0.63 means 0.37. 0.37 is nothing 1 minus 1 by E. तो क्या हो गया यहाँ से? ये हो गया R tau by L is 1. इसका मतलब था 1 minus e raised to power minus 1. So tau becomes, what is time constant of the circuit? L by R. L by R is dimensionally that of time. That is how growth of current. Current at any instant has been obtained. I can get the potential drop across L. क्या है? L di by dt. Differentiate and write the potential drop if I want to. What is the potential drop across R at any instant? I into R. I at T is known to you. Correct? If I want to find out what is the power drop, power spent across L, what is the power spent across L? बार बार ना बताऊंगा. L के क्रॉस कितनी पावर थी? हाफ एल आई स्क्वायर है जी. पूरा ड्राइव किया एल डी आई ई आई डी टी. हाफ एल आई स्क्वायर. आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम you know what is the power at any instant. I square R is the power across this. That is what is required across both of them. Power across L, half Li square. Power across R, I square R. Correct? I as a function of T is known to you. Power as a function of T is known to you at any point of time. Good. Khatam. Nothing. If I remove the battery, if I remove some maximum current has been built up. Whenever I have switched on the current, maximum current has been built up. And what is the maximum value? I by V by R. Correct? Now I switch off. Remove the battery. Then current will decrease. L di by dt plus IR is 0. क्या हो गया जी? di by I is nothing minus R by L dt. When the battery is removed, current will decrease. di by I. Integrate.
क्या हो गया, ln I इज माइनस RT/L प्लस C. T इज इक्वल टू 0. एट T इज इक्वल टू 0 करंट कितनी थी, I0 था, तो कुछ नहीं हो गया. I इज इक्वल टू I0 e रेज़ टू पावर माइनस RT/L. दिस इज डीके ऑफ करंट. ऐसे डीके है, दिस इज डीके ऑफ करंट. दैट वाज द ग्रोथ ऑफ करंट. Is a decrease of current. Purely RL circuit I have told you in DC. DC. Source is steady, potential drop does not change with respect to time. Correct? ठीक है जी. Next. RC circuit. C and R. Series RC circuit. Series RC. What is the potential drop across this? Q by C. What is the potential drop across this? IR is V. Q by C plus IR is V. And what is the current? Rate of charging. So this becomes Q by C plus R dq by dt is V. It becomes nothing. R dq by dt is V minus Q by C. When the circuit is connected, what we are doing? Charging the capacitor. This is called charging of capacitor. So it becomes dq upon V minus Q by C is dt by R. dq upon V minus Q by C is dt by R. Integrate. माइनस क्या हो जाएगा whenever I integrate. देखिए V minus Q by C is X, so it is nothing. ln X हो जाएगा माइनस C ln V minus Q by C is T by R. Correct? T by R. Plus definitely constant of integration plus your constant of integration plus C1. If I divide by this, divide by minus C, divide by minus C, divide by minus C, then what will happen? Minus T by RC minus C1 by C. Correct? Why the boundary condition? At T is equal to 0. T is equal to 0. Charge is 0. Capacitor is uncharged. So ln V is equal to minus C1 by C. Minus C1 by C. C here C1 is an arbitrary constant, C is the capacitance. So this becomes ln V. It becomes plus ln V. Minus C1 by C is plus ln V. Correct? So it becomes nothing ln V minus Q by C minus ln V, which is nothing ln M by M. So next step is nothing. I have written this boundary condition. V minus Q by C upon V is equal to e raised to power minus T by RC. Nothing. 1 minus Q by CV e raised to power minus T by RC. What is Q? What is the charge on capacitor plate? Q is equal to CV
1 minus e raised to power minus t by RC. This is charge on capacitor plate at any point of time. The Q as a function of t. CV 1 minus e raised to power minus t by RC. Good. What is the maximum charge stored on the capacitor? CV. When it occurs? T is equal to infinity. Once again, charging of capacitor at t is equal to 0, this was like this, and this becomes Q0 becomes CV. This is T. This is Q at any t. Current at any point of time, dq by dt, differentiate, you can get the current at any point of time. Good. We require, what we require in response? Current and power. Power across R, I square R. Power across R is I square R. R square, I square R. I is obtained by differentiation. Differentiate, I am not interested. P at R is I square R. P at C, power as capacitance. Q square by 2C. आप CV square और Q square. Q square by 2C. Q is written. I can always write down the power at any point of time. So power at both the things have been obtained, current has been obtained, this is this. Maximum value is CV. Whenever the charge becomes 63% of the maximum charge, 0.63 Q naught, this time is called time constant of the circuit. यहाँ पर भी वही लॉजिक लिख दिया, 1 minus 1 by E is 0.63 of CV. Time constant. Tau. At t is equal to tau, Q becomes 0.63 Q naught, which is 0.63 CV. यहाँ पर अपने आप आ गया, क्या आ गया अपने आप? tau कितना हो गया? RC हो गया. RC is dimensionally, और एक्सपोनेंशियल मालूम है डायमेंशनलेस होता है. Exponential is dimensionless, so RC must be otherwise also dimensions of time. That is charging. This, whenever I switch off, remove the battery, then capacitor will get discharged. Already charge CV has been built up. So for discharging, what I should do? Just zero कर दो उसको. Q by C plus dq by dt R is 0. IR लिख दिया आगे. Q is nothing, टाइम नहीं लगाना. Q0 e raised to power minus T by RC, discharge of capacitor. Discharge of capacitor. Potential across C plus potential across R is equal to 0. Finished. Discharge of capacitor. Not interested. Finished है, सबको मालूम है जी. Series LCR circuit in steady state, steady condition. और कौन सा रिस्पॉन्स निकालना है? Transient response. L, C and R connected with the battery, key closed, current flows, V is constant. L, C and R in series. Correct? Potential drop across L,
what is potential drop across C plus potential drop across R must be equal to V, net V. So what is the, I can sorry, it is complete. So what is the potential drop across this? L di by dt plus L di by dt plus Q by C plus IR is what? V. And what is V? Constant. V is your constant. ठीक है भैया, ठीक है. What is I? dq by dt. एक तो one way is this, I is dq by dt. So di by dt is L d2q by dt2 plus R dq by dt plus Q by C is what? V. Correct? This is one equation. Another thing what I do, next thing what I do, divide by L, R by L, Q by LC, V by L. ये इक्वेशन कभी पढ़ी थी क्या? I can very well say Q double dot plus 2C Q dot dq by dt is Q dot. This is Q double dot. I am calling this 2C is R by L. 1 by LC I am calling omega 0 square natural frequency in absence of damping. This is damping. Resistance is damping plus omega 0 square Q is V by L is constant. Where what I have called omega 0 square? Omega 0 square is 1 by LC, natural frequency of the circuit. Good. ये क्या है? फोर्स क्यों है? इज इक्वेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेटर, क्योंकि कांस्टेंट है. V बाई एल तो ऐसे ही ऐड कर सकता हूँ, जीरो भी मान सकता हूँ. इज ए कांस्टेंट. इट इज ए इक्वेशन ऑफ डैम्ड मोशन. इज ए इक्वेशन ऑफ डैम्ड मोशन. अगर C 0 होता, R 0 होता, रेसिस्टेंस नहीं होता कॉइल में, तो क्या होता था? d2q by dt2. ओनली L and C is there. Q by LC is V by L. V by L by suitable choice of scale can be also taken to be 0. स्विच ऑफ कर दूँ या वैसे कर दूँ, 0 मान लूँ, तो क्या हो जाए? डी Q डबल डॉट प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर Q इज 0. क्या सोल्यूशन होता अगर ये इक्वेशन रहता? x डबल डॉट प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x 0. क्या सोल्यूशन है? व्हाट इज दिस? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है आंसर? क्या है? हाँ भैया, क्यों यार, अपने माइंडसेट से बाहर जाओ. क्या है? SHM है. SHM मैथमेटिक्स सेकेंडरी टर्सरी है. सोल्यूशन देखते ही लग गया कि रटा रटाया बैठा है, आता कुछ नहीं है मैथ्स में. जहाँ जो सोल्यूशन बोलता है उसको तुरंत साइलेंट करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ नहीं लिखना है. क्या हुआ? क्या SHM है? अनडैम्ड SHM है. अनडैम्ड SHM. गुड. अनडैम्ड क्यों है? क्यों अनडैम्ड है? x is equal to a sin omega 0 t plus pi है. a will always any time a will remain same. x max is always constant. अगर ये लिखा हुआ है तो इसका सोल्यूशन है x is equal to a sin ओमेगा 0 t प्लस पाई. किसी भी टाइम आप टाइम में देखोगे सोल्यूशन विल ऑलवेज बी सेम. एम्पलीट्यूड डज नॉट डिके, दैट इज व्हाई अनडैम्प्ड मोशन. सो चार्ज इज ऑसिलेटिंग बिटवीन L एंड C. इसका सोल्यूशन आ जाएगा. इसका क्या सोल्यूशन है? C इज 0. इज C इज 0.
सी हमारा ए सी, मतलब आर इज जीरो, रेसिस्टेंस इज जीरो, सर्किट कॉन्टेन्स ओनली एल एंड सी, देन चार्ज इज ऑसिलेटिंग बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एल मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, सी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इज ऑसिलेटिंग। क्या सोल्यूशन हो गया इसका? इसका सोल्यूशन क्या हो गया? इसका सोल्यूशन हो गया क्यू इज क्यू जीरो, याद रखना हमेशा काम आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, 50 बार करके चला गया, साइन ओमेगा जीरो टी प्लस पाई, ओमेगा जीरो इज 1/√LC, चार्ज इज ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटरी सर्किट है, इफ आर इज जीरो, अनडैम्प्ड मोशन, क्यू जीरो, एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज क्यू जीरो, क्यू जीरो साइन, क्यू जीरो इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, साइन ओमेगा जीरो cos ओमेगा जीरो टी प्लस पाई। Good. Due to damping, due to presence of R, amplitude decreases. Amplitude decreases. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? कुछ नहीं करना है, जिसको कुछ नहीं आता है उसको तो आएगा भी नहीं। Q डबल डॉट प्लस 2C Q डॉट प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर क्यू, क्या जी, V0/L, V0/L को जीरो कर लूँ, सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन क्या होगा इसका? सोल्यूशन होगा Q कहीं भी लिखूंगा, Q एट T जो लिखने जा रहा हूँ, इट इज़ नथिंग, V0/L एज इट इज, एड हो जाएगा, प्लस सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या कहते हैं इसको? CF कहते हैं, CF मतलब इसको जीरो लिख दो, इसको जीरो लिख दो, तो यहाँ सोल्यूशन में लिख दिया V0/L, दिस इज Q एट T एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखें? d2q/dt2 अल्फा e रेज़्ड टू पावर अल्फा t मान लूँ, Q इज नथिंग, Q0 e रेज़्ड टू पावर अल्फा t, तो क्या होगा इक्वेशन? इक्वेशन हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2C अल्फा प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर जीरो, अल्फा इज माइनस 2C प्लस माइनस C स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, 4C इसका मतलब 2/2, सो माइनस C प्लस माइनस रूट C स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इफ C इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, C is greater than omega naught, both of them are distinct roots. Case 1 जो वहाँ था, so LCR circuit in series, LCR circuit in series in DC, when the source is steady behaves like a damped oscillator, it is a damped SHM। क्या करने जा रहे हैं? ये unimportant है, when this is root then vibrations will die out। ये तीन तरीके के सोल्यूशन होंगे इसमें। केस वन, तो इसका क्या सोल्यूशन हो गया? क्यू क्या हो गया यहाँ पर? क्यू क्या हो गया? जो था V0/L प्लस क्या हो गया? e रेज़्ड टू पावर माइनस CT, मतलब e रेज़्ड टू पावर Q0 e रेज़्ड टू पावर C कितना था जी? RT/L। नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और भी अच्छा है ना हो, C1 e रेज़्ड टू पावर रूट C स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्या हो गया जी? C स्क्वायर कितना हो गया? R स्क्वायर, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ऑप्टिक सबको पढ़ा दिया जी, R स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर माइनस 1/LC, और क्या? इंटू टी प्लस C स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर T प्लस C2 माइनस सेम थिंग प्लस C2 e रेज़्ड टू पावर माइनस सेम रूट R स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर माइनस 1/LC T, करेक्ट? What is this called? What the solution called? Overdamped case. Overdamped case. As time progresses, vibrations will die out. Charge will become simply V0/L. करंट निकालना है तो क्या करूँ? डिफरेंशिएट कर दूँगा, टर्म जीरो हो जाएगा, इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करेक्ट? करंट भी ऐसा ही होगा वैसे, अभी बता देता हूँ। देखो पहले से ही करंट लिख सकते हैं, ये तो चार्ज निकाल दिया, आई कैन आस्क द सेम 2 क्वेश्चंस, क्यों खत्म हो गया? व्हेन C इज इक्वल टू ओमेगा नॉट तो क्या हो जाएगा? केस टू C is equal to omega is called critical case। Q हो जाएगा जी V0/L प्लस Q0 e रेज़्ड टू पावर माइनस RT/2L
ये C1 प्लस C2 मतलब C नया कांस्टेंट हो गया। जब अगले से लिखेंगे भाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से लिखेंगे वो क्या हो जाएगा जी, C1 प्लस C2t V0 by L Q0 e raised to power minus RT by 2L C1 plus C2t. As time progresses, this will also die out. ये कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. कांस्टेंट मीन्स जस्ट चेंज ऑफ स्केल. इज अ कांस्टेंट टर्म. दिस इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम. एज टाइम प्रोग्रेसेस, जैसे टाइम इनफाइनाइट होगा टर्म बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इट विल die out. So vibrations die out. This is second case. Both these cases are unimportant. They are only important whenever I have to make the ballistic galvanometer kind of thing. Because in ballistic galvanometer, pointer has to be brought to immediately at rest. So I choose C is greater than omega naught. More damping is more, pointer will immediately come to rest. Otherwise, ये दोनों केस important, unimportant है. Most important case is what? When C is less than omega naught, that is called damped SHM. This will become complex. यहाँ पर J out हो जाएगा रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. So ये हो जाएगा e raised to power माइनस सेम थिंग V0 by L प्लस Q0 e raised to power माइनस RT by L. C1 e raised to power iota root omega 0 square minus C square T plus minus, that is sin and cos. So it is nothing, sin omega 0 T plus pi. So case 3, damped SHM. Damped SHM. When damped SHM? Damped SHM, this is called oscillatory or periodic case. When this takes place? When omega 0 is greater than 2C. Omega 0 is what? 1 by LC is greater than, और ओमेगा 0 इज ग्रेटर देन 2C, ओमेगा 4C स्क्वायर. क्या हो गया जी? ओमेगा 0 वाज ग्रेटर देन C. तो कब हो गया ओमेगा 0 वाज ग्रेटर देन C? कब हुआ बताओ मुझे? 1 बाई LC. थर्ड केस इज, अरे यार, R स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर. Correct? 1 by LC is greater than R square by 4L square. Omega 0 is greater than this. Good. तो क्या हो गया? क्या हो गया जी? 4L square से मल्टीप्लाई किया दिस साइड, 4L square से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 4L by C is greater than R square. That is R is क्या? What is R? Less than 2 root L by C. ध्यान रखना, R is less than 2 root L by C. रेसिस्टेंस इज स्मॉल. ये रेसिस्टेंस के टर्म्स में कंडीशन निकाल दी. R is less than 2 root L by C. फर्स्ट केस में कहता R is greater than 2 root L by C. L by C is also dimensionally that of R. Whenever the resistance is less than, ये तीनों पैरामीटर दे दिए हैं आपको. When the circuit is oscillatory, or what is the frequency of oscillations, or whatever I have to calculate numerically, only third case I will find out. RLC दिया रहेगा, पहले निकालोगे 2 root L by C. क्या करोगे? 2 root L by C. After knowing that, you can compare with R. If it is less than that, it is a damped SHM. Case is damped SHM. Everything will result whatever we have done, that holds good. Good. तो इसमें क्या solution हो गया? कुछ नहीं solution हो गया. Q at T is what? V0 by L. Q is what? V0 by L plus Q0 e raised to power minus RT by 2L. क्या सोल्यूशन था? साइन ऑफ ओमेगा डैश T प्लस 5. ओमेगा डैश कितना है जी? रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. क्या हो गया ओमेगा 0 स्क्वायर? 1 बाई LC माइनस R स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटरी सर्किट. कैलकुलेट कर दिया, 1 बाई LC माइनस R स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर. दिस इज द फ्रीक्वेंसी. दिस इज द फ्रीक्वेंसी. करेक्ट. दिस इज damped SHM. What is the current? What is the current?
करंट बताओ क्या होगा जी, आई डी क्यू बाई टी। बताओ झट से मुझे क्या होगा करंट, मुझे बताओ करंट क्या होगा जी। क्यों इतनी जोर से बातें कर रहे हो? आई डी क्यू बाई डी टी। क्लास में कितना पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, जैसे ही मैं बाहर चला जाता हूँ वैसे ही सबको आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाती है। 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। डिफरेंशिएट करंट बताओ क्या होगी करंट? कुछ नहीं होगी, दिमाग नहीं लगाना है। आई जीरो ई रेस्ट टू पावर माइनस आर टी बाई 2L। करंट क्या होगी? यही होगी आई जीरो, वो डिफरेंशिएशन में ख़त्म हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस आर टी बाई 2L। और क्या होगा जी? साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। करंट भी यही होगी, आई जीरो ई रेस्ट टू पावर माइनस आर टी बाई 2L साइन ऑफ ओमेगा डैश टी। सेम फॉर्मेट में होगा, डिफ्रेंशिएट करके देखते चले जाओ। डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आई नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस आर टी बाई 2L साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। What frequency? 1/LC minus R square by 4L. If R is 0, it is 1/LC, undamped frequency. Due to this damping is a why damping? Current is decaying. Current is decaying by the factor of e raised to power minus RT by 2L. तो ये ग्राफ है जी, ये ग्राफ है। ये तीनों केस बना दिए मैंने आपको। दिस आई जीरो और क्यू जीरो जो भी कहना चाहो, एंड दिस इज आई जीरो ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई 2L। ये साइंस हो गया। दिस इज द केस 3। दिस इज डैम्ड SHM। डैम्ड SHM। Which case is important here? When only when C is less than omega naught. C is less than omega. What was C is less than omega naught? R is less than 2 root L by C. Why is that? खत्म हो गया, करंट आ गई, करंट आ गई। अगर जिसको भी थोड़ा भी डाउट है कि कैसे आई, बेसिक से भी आ जाएगी, बेसिक से भी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, बिना कुछ करे हुए फर्स्ट लाइन में बिना डिफरेंशिएशन के भी आ जाएगी। गुड। आर इज दिस current is obtained, charge is obtained. Now what is the third next response? Power, power, energy, energy कितनी है सर्किट में? Who is going to store the energy? R is doesn't store the energy. R में तो क्या है? Only power is dissipated. Resistance only dissipates power. Who stores energy? L and C. क्या? L and C. How much energy is stored in L? Half Li square. How much energy is stored in C? Half Q square by 2C. Q square by 2C plus half Li square. समझ में आया? ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। Q square by 2C plus half L, ये अपना ये है। Q निकाल दिया, ऐसे लिख दूँ, Q square by 2C plus half L। आई कितना था? डी क्यू बाई डी टी होल स्क्वायर। मतलब ये हमारा एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी आप एम वी स्क्वायर है, और ये क्या है? आप के एक्स स्क्वायर है। एक्स को अगर क्यू बोल दूँ, इट इज द पोटेंशियल फॉर्मेट ऑफ पोटेंशियल, इज द फॉर्मेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। गुड। क्यू का फार्मूला लिख रखा है आपको, डिफ्रेंशिएट करके सारे लिख दीजिए जैसे वहाँ लिखा था। तो क्या आंसर था एनर्जी का? एनर्जी कितनी आई थी जी? एनर्जी डिराइव करवाई थी, ई टी क्या आई थी जी? ई जीरो माइनस 2CT, 2CT। यह एनर्जी का फार्मूला आया था, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे अप्रॉक्सीमेट किया था सेम डेरिवेशन। E एट टी, एनर्जी एट एनी टाइम टी इज व्हाट? ई जीरो ई रेज टू पावर माइनस 2CT। ई जीरो क्या हो गया? ई रेज टू पावर माइनस RT बाई L। करंट कैसी थी? RT बाई 2L। चार्ज कैसा था? RT बाई 2L। हियर इट इज व्हाट? RT बाई L। दैट इज योर ET। एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज दिस।
formula substitution numerical problems have been asked. This is the energy at any point of time. Energy decreases square of current or charge more rapidly, e raised to power minus RT. What is rate of dissipation of energy? Rate of इसको देखूंगा किस रेट से डिक्रीज हो सकती है, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. तो क्या करूं, डी बाई डी टी करना है, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी. एनर्जी विल डिक्रीज. एनर्जी देखो डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है. दैट इज वाई टू द डैम्प्ड मोशन. इफ आर इज जीरो, इफ रेजिस्टेंस इज जीरो, एनर्जी इज कांस्टेंट ई जीरो. ड्यू टू ओनली आर दिस एनर्जी इज डिक्रीजिंग. डी बाई डी टी क्या होगा, डी बाई डी टी माइनस आर बाई एल ई जीरो ई रेस्ट टू पावर माइनस दिस इज ई. Rate of energy dissipation is proportional to R by L into energy stored at any point of time. It is energy stored at any point of the question कराया था मैंने जाके waves का पहला question which has been asked in the exam. Rate of energy dissipation is time constant multiplied by energy stored into the system. Quality factor कैसे define किया था मालूम किसी को? कुछ नहीं है, nothing, blind. और रोज कह रहा था टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, टेस्ट देना. कब देने टेस्ट आना है? कल. याद रखना, मैं हमेशा याद रखता हूँ. इसके लिए टेस्ट कल है और आपके लिए कब है? फ्राइडे को है. एक ही दिन आओ, बार बार रोज रोज आने की ज़रूरत नहीं है. गुड. टेस्ट है. उससे पहले टेस्ट कब है? टेस्ट कब है? व्हेन इज द टेस्ट? फ्राइडे. फ्राइडे. For him test is tomorrow. If anybody wants to take test tomorrow, most welcome, come tomorrow also. Tomorrow also I am keeping the classroom free 2 to 5. क्या 2 to 5 tomorrow. कौन सी डेट है? 29th July. Test of mechanics. Whosoever wants to take can come. Otherwise you can come on Friday. After Friday no test of mechanics. Next week किसका टेस्ट दोगे? ऑप्टिक्स का. नेक्स्ट फ्राइडे को ऑप्टिक्स का टेस्ट होगा. नेक्स्ट फ्राइडे थर्ड के सेकेंड अगस्त टेस्ट ऑफ ऑप्टिक्स. गुड. 29 नहीं थर्ड को क्या? सेकेंड को किसका टेस्ट है? मैकेनिक्स का है ना आपका. सेकेंड को मैकेनिक्स का टेस्ट है भैया. इनका टेस्ट कल है 29 को और आपका टेस्ट कब है मैकेनिक्स को? सेकेंड को है. नेक्स्ट 7 दिन के बाद 9th मीन्स नेक्स्ट फ्राइडे. नेक्स्ट फ्राइडे विल बी द टेस्ट ऑफ ऑप्टिक्स. 9th को है भैया. आपके लिए 10 दिन मिलेंगे जी करने के लिए. गुड. कल आपका मैकेनिक्स का टेस्ट होगा. एंड ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो आई एम मेकिंग एन अनाउंसमेंट. देयर इज अ रेगुलर टेस्ट. आप देने की हिम्मत रखो. साल में 2 बार दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके बाद आओगे तो फीस दोगे. फिर से बार बार बता रहा हूँ. 1 साल के बाद आओगे तो क्या करोगे? फीस देके फिर से एडमिशन लोगे. और किसको एडमिशन मिलेगा? सबको नहीं मिलेगा. कभी नहीं मिलता है. आई डू नॉट हैव टाइम. क्लासरूम में जितने होते हैं मैं उनकी एक की भी कॉपी नहीं जांचता हूँ. बता दिया ना आपको. बहुत बढ़िया काम है. किसी की कॉपी जांचता ही नहीं हूँ. कभी नहीं जांचती आज तक मैंने. कॉपी कब चेक करता हूँ? कब कॉपी चेक करता हूँ भाई? आपको मालूम है कॉपी कब चेक करता हूँ? क्या भाई आपका क्या नाम है? रोहित. कॉपी कब चेक करता हूँ मैं? हाँ क्या करता हूँ भैया? सबको डिक्लेयर कर रहा हूँ कैमरे के सामने. मेरा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है 25 साल से. पढ़ाने का स्टाइल है कि मैं कॉपी किसी की चेक नहीं करता. कॉपी चेक करने लायक आपको खुद बनानी होती है. अगर आपकी कॉपी चेक करने लायक है तो खूब देखूंगा, खूब फ़ोन करके बताऊंगा. और ये भी बताया मैंने कि मैं उन टीचरों में हूँ कि अगर आपको 125 से ऊपर दिया तो घर में फ़ोन करूंगा आपको कि आपको 125 आया, कहीं नकल तो नहीं करी है. यही पहला क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता आपने क्या किया है ऑनलाइन वाले से. ऑफलाइन वालों को तो कोई फाइट ही नहीं है. सामने बैठा मेरे. ऑनलाइन वाले से पहला क्वेश्चन पूछता हूँ. अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो और भी अच्छा. कह रहे कैमरे के सामने बता देता हूँ. अगर 125 से प्लस आएगा तो फ़ोन भी करके पूछूंगा कोई नकल. कितने घंटे टाइम लिए थे? व्हाट टाइम यू हैव टेकन? डिड यू कंप्लीट द पेपर विद इन 3 hours?
बिकॉज फिर से रिपीट करूंगा, इफ यू आर कॉपिंग यू आर बिट्रेइंग योर सेल्फ, नॉट बिट्रेइंग मी। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई सर्टिफिकेट थोड़े देने जा रहा हूँ तो फिजिक्स के विद्वान हो, ना मेरे सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू है। वैल्यू तब है जब एग्जाम पास कर जाओगे तो ठीक है। और मेरे एग्जाम का पॉजिटिव कोरिलेशन है, आई मेंटेन दिस बिकॉज देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन। वट एवर काइंड ऑफ मार्क्स आई विल गिव, ऑलमोस्ट सेम मार्क्स यू विल गेट इन द एग्जाम, ऑलमोस्ट सेम। गुड, सही हो गया जी। बताइए क्वालिटी फैक्टर क्या था? क्वालिटी फैक्टर क्या था? 2 पाई टाइम्स एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस पर साइकिल। दिस इज एनर्जी लॉस पर सेकेंड। क्या है? एनर्जी लॉस पर सेकेंड। सो एनर्जी लॉस पर टाइम पीरियड, साइकिल मीन्स पर टाइम पीरियड, तो क्या करूं इसको? पर सेकेंड पर टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। से बाई से टाइम पीरियड इज टी, दैट इज आर बाई एल ई। ये ई से ई कट गया, 2 पाई बाई टी क्या हो गया? ओमेगा डैश एल बाई आर, ओमेगा डैश एल बाई आर। यहाँ पर भी क्वालिटी फैक्टर है ओमेगा डैश एल बाई आर। गुड, ओमेगा डैश इज नियरली इक्वल टू ओमेगा जीरो। इसमें भी अप्रोक्सीमेशन है, जब ये लिखा हुआ है इसमें हमने मान के चला हुआ हूँ ओमेगा डैश इज नियरली इक्वल टू ओमेगा जीरो, क्योंकि ओमेगा डैश था क्या? 1 बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर, एंड आर वाज लेस देन 2 रूट एल बाई सी। बहुत बहुत कम भी हो सकता है, आई कैन नेग्लेक्ट दिस पार्ट, 1 बाई एल सी, ओमेगा डैश इज रूट। सो क्वालिटी फैक्टर इज सिमिलरली ओमेगा जीरो एल बाई आर। कुछ पूछना हो पूछ लो, समझ में आ गया? हाँ, व्हाट? क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? 2 पाई टाइम्स एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस। देयर आर 3 definitions of quality factor. There are 3 definitions of 2 definitions I have invoked. One is this simplest, energy stored divided by energy loss in radians. Radians means 2 pi से हो जाएगा, 2 pi times energy stored divided by energy loss per cycle per time period. This is energy loss per second, d by dt, energy loss per second per unit time. Per unit time period multiplied by t. So 2 pi by t time period is omega dash frequency, omega dash L by R. This is the quality factor. Omega dash is nearly equal to omega 0, omega 0 L by R. This is already we have done in course on optics. I have already done this course things in, बट ऑप्टिक्स में किया या ना किया बस डांट का फ़र्क है कि पहले कर चुका हूँ, ऐसे मुंह फाड़ के देख रहे हैं तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अदरवाइज ऑलरेडी आई हैव डन, ऑलरेडी आई सेड आई विल नॉट डू इट, बट आई हैव टू डू। पूरी क्लास खराब हो गई, एवरीथिंग वाज रिपीट। वट एवर आई टॉट टिल नाउ इट इज इन रिपीट। आई ऑलरेडी सेड माई फेवरेट क्वेश्चन इज दैट सीरीज LCR सर्किट इन DC is equivalent to a damped oscillator. Every result sold good, all results are sold. चलिए और जीरो से चेंज कर रहा हूँ। पहले क्या लिखा था? व्हाट वाज द इक्वेशन? क्या था? पोटेंशियल ड्रॉप Q बाई C प्लस IR प्लस L DI बाई DT, करेक्ट? वाज व्हाट? V, यही था ना? If I wanted the charge, but if I ask you the current, then you need not solve by charge and differentiate. That is foolishness. अगर मैं करंट पूछ रहा हूँ, discuss the current in the circuit, then definitely you can go by the Q and differentiate, and then also you will get the current. Answer will be same. But if I am asking the question is on current, then what I will prefer after this? This is a potential drop across C, potential drop across R plus potential drop across L is equal to V. V is a constant. Correct? Now what I do? Differentiate. Differentiate the whole equation with respect to time. Equation will be in current. It is relatively easier. क्या हो गया? dq by dt C, 1 by C dq, R di by dt प्लस L d2i by dt2. V का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? What is V? कांस्टेंट था, di by dv by dt is 0. फिनिश्ड? फिनिश्ड? कितना सरल आ गया इक्वेशन? नाउ जस्ट सी, नाउ आई जस्ट डिफरेंस डिवाइड बाई L d2i by dt2 प्लस R by L
di by dt plus 1 by LC, I is 0. This is the differential equation for growth of current. d2I by dt2, d2I by dt2 plus R by L di by dt plus I by LC is 0. Same solution, nothing. I call d2I by dt2 plus omega plus 2c di by dt plus ओमेगा 0 स्क्वायर आई 0. क्या सोल्यूशन हो गया? वही सब कुछ. All the three cases. Only case is important when R is less than 2 root L by C. इस केस में सोल्यूशन क्या होगा? यह सोल्यूशन होगा जो वहाँ लिख के चला गया था, RT by 2L, I is equal to I0 e raised to power RT by 2L sin of omega dash t plus phi, where omega dash is root 1 by LC R square by 4L square. ठीक है कि नहीं? Damned SHM, damned SHM. This is damned SHM. Already I told you how to solve the differential equation, correct? Everything else is same. करंट कितनी? यहाँ पे Li स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2c, सब कुछ बाकी वही है. करंट सीधे निकाल दी, सीधे करंट निकाल दी. C इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट में करंट कितनी थी? I नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई 2L, C1 ई रेज टू पावर ओमेगा डैश टी प्लस C2 ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा डैश टी. C इज इक्वल टू ओमेगा नॉट में क्या था? C1 प्लस C2t e raised to power minus RT by 2L, correct? That is finished. अब देखो भैया, अब मैं जा रहा हूँ AC में. AC में कुछ नहीं करना है. Z L का क्या रोल है? L में Z कितना है? J ओमेगा L है. C में L कितना, Z कितना है? ये ZL है. ZL को XL भी बोलते हैं, ZC को XC भी बोलते हैं. ये क्या था जी? 1/J ओमेगा C. J is complex, J is complex and J is pi by 2, phase shift of pi by 2. ये J जो है ये कुछ नहीं है, e raised to power J pi by 2 है कि नहीं? J is nothing e raised to, so ये कुछ नहीं हो गया. ओमेगा L e raised to power J pi by 2. This is 1 by omega C e raised to power minus J pi by 2. That's it. बस R is R. अब देखो भैया, करंट निकालनी है. करंट क्या है किसी भी सर्किट में? व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? V by Z. करंट इज V by Z. पावर क्या है? पावर क्या है जी? V इंटू आई है. V इनपुट है, V इनपुट है, V स्क्वायर बाई Z है. पावर कहीं पर भी कितनी है? V स्क्वायर बाई Z है कि नहीं? I इज V by Z. गुड. जो कैलकुलेट करना था कैलकुलेट करके सब दिखा दिया. ठीक है, बस. किसी भी सर्किट को भी कैन एनालाइज. हु इज कॉसिंग द फेज शिफ्ट? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेज शिफ्ट? J. J इज ए कॉम्प्लेक्स पार्ट. J इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेज शिफ्ट. J इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेज शिफ्ट. किसकी वजह से? R की वजह से फेज शिफ्ट है क्या? डज R कॉसेस फेज शिफ्ट? नो. R इज ए रियल. R में कुछ नहीं है. J किसमें साथ है? L के साथ J है और C के साथ J. Both of them L and C, they are called reactive components. Reactive components of impedance which are responsible for phase shift. Phase shift में भी phase lead और phase lag. If it is a capacitance, current will lead. If it is inductance, current will lag. That's it. Who causes phase shift? Combination of L and C. In the impedance Z is due to what? L, C and R. इन तीनों में से इमेजिनरी कौन है? L and C. So Z can always written as A plus JB. Z, whatever the circuit, whatever. देखो भैया, DC में कुछ नहीं करना था, डेरिवेशन करने थे, सीधे करके चला गया, खत्म हो गया. DC से न्यूमेरिकल आएगा, भी सब खत्म करा दूंगा. फिनिश.
डीसी में कोई दिमाग नहीं लगना होता, सीधे इक्वेशन सॉल्व करनी होती है डीसी. Now only important is AC circuits. AC is equal to a forced oscillator because I am applying a V0 e raised to power j omega t. A source of variable frequency has been used. Omega can be changed. A source of a frequency omega has been used and circuit is having some natural frequency. Natural frequency of the circuit is dependent upon whom? L and C. Omega 0 is 1 by root LC. Natural frequency of the circuit, undamped circuit, 1 by root LC. And there is a frequency applied. Applied frequencies of EMF 50 हर्ज है, 60 हर्ज है, 100 हर्ज है, मुझे क्या मालूम जो भी है. There is a frequency of source. Source is operating at certain frequency. System is having some particular frequency. What is the state of resonance? State of resonance किसे कहते हैं? State of resonance. Natural frequency becomes equal to this. साइड लाइन की चीज है. मेन चीज क्या है? Source and system are perfectly synchronized. That means no phase shift, no lead, no lag. Source means V0 e raised to power j omega t. Source is a frequency omega. Source ये जो लगाया है V0 e raised to power j 5 भी जोड़ दे तब भी नहीं. Source is a frequency omega and natural frequency is omega 0. When both these frequencies match, then it must be perfect. Resonance will be means there should not be any phase difference. Most important aspect is there should not be any phase difference. Perfectly synchronized, no lead or no lag. Whenever they are perfectly synchronized, whenever their frequency will automatically match, both the frequencies will become same, or vice versa. When the frequencies match, then there will not be any phase shift. Resonance is the state of perfect synchronization. System and source, both of them are perfectly synchronized, then only response of the system is best. And response is measured by current. In series circuit, it is measured by current and power. Good. So current is maximum, current resonance, power is maximum, power resonance. When? Well, phase shift is 0. Who causes phase shift? L and C. तो भैया किसी भी सर्किट में कुछ भी लगा हुआ हो, कुछ भी जेड कहीं से भी आए, Z1 प्लस Z2 प्लस ZN और 1 बाई जेड इज 1 बाई Z1 प्लस 1, क्या लिख सकता हूँ? A प्लस JB. करेक्ट. ये J पार्ट B पार्ट किसकी वजह से है? L और C की वजह से है. ये Z कैसे भी आ जाए, समझ रहे हो? सीरीज में है Z1 प्लस Z2 प्लस ZN. आई कैन ऑलवेज सेग्रीगेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेज शिफ्ट? J पार्ट. पुट J पार्ट 0. In the impedance, put the J part 0. Condition of resonance is obtained. Everything will be obtained. समझ में आ गया क्या किया? कुछ नहीं करना है, जो भी सर्किट हो उसका Z लिखो सीरीज में. दिस एनालिसिस इन सीरीज. पैरेलल में 1 बाई Z को सेट करूंगा, अभी बता रहा हूँ क्यों. ये समझ में आ गया? चलिए जी, आई एम गोइंग फॉर, चलिए सिंपल में पहले 2 लाइन में सीरीज LR सर्किट. L and R. V is V0 e raised to power j omega t. I have applied. L and R. I is there. Now I can solve the difference. One thing is that I can solve the differential equation as I have done the earlier case, because I have to get the current. So क्या हो गया? L di by dt plus IR is V. Now it is not that simple as it was the earlier case. Now it is a linear differential equation. अब a linear differential equation है, because this is a function of time, that is also function of time. dy by dx plus pxy is qx. Linear differential equation. Solve करोगे, कैसे करोगे? I into integrating factor will be right hand side into integrating factor integrate dt plus constant of integration. Solve करोगे, वही आंसर आएगा जो 2 लाइन में आ जाएगा. कितनी लाइन? 1 लाइन में. 1 लाइन में आंसर आ जाएगा. करेक्ट. दैट इज व्हाट इज द एलिगेंस ऑफ मैथमेटिक्स, हाउ मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुली यूज्ड. देयर आर 2 वेज. इसको सॉल्व करोगे, सबको आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं आता है तो भाई साहब फिजिक्स पढ़ने लायक नहीं हो. सही बता रहा हूँ आपको. dy बाई डी एक्स प्लस ये क्या हो गया? डी बाई डी टी प्लस आर बाई एल आई इज इक्वल टू दिस. फंक्शन ऑफ टाइम है सारा. सो हो गया dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स. This is linear differential equation. Solution is y into integrating factor is qx into integrating factor dx plus this.
ओरली बता दिया, आंसर आ जाएगा आपको, लेकिन एक पेज भरना पड़ेगा। यू हैव टू फिल 1 पेज। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 12वीं क्लास का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा जी? लीनियर। खुश नसीब रहो कि फिजिक्स में इसकी ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स वालों ने हर चीज़ का अपना तोड़ निकाल रखा है मैथमेटिक्स को अवॉइड करने का। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इट इज़ टिपिकली डन बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कुछ नहीं है जी, दोनों सीरीज में है। व्हाट इज इम्पीडेंस ऑफ एल? जे ओमेगा एल। कितना है? जे ओमेगा। इसका क्या है? आर है। Z1 प्लस Z2 आर प्लस जे ओमेगा एल। नेट जेड कितना हो गया इस सर्किट का? नेट जेड कितना हो गया इस सर्किट का? आर प्लस जे ओमेगा एल। गुड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? आर प्लस जे ओमेगा एल। करंट तो आ गई, कुछ नहीं करना है, एक लाइन में करंट आ गई। आई वी बाई जेड। V0 ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी आर प्लस जे ओमेगा एल। आ गई करंट। आई नथिंग वी बाई जेड, वी टी लिख दिया, आई टी हो गया करंट। V0 रेज़ टू आर प्लस जे ओमेगा एल। करेक्ट। आर प्लस जे ओमेगा एल इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे लिख सकता हूँ? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? प्लस ओमेगा स्क्वायर एल। फेस कितना है इसका? ई रेज़ टू पावर जे फाई। फाई कितना? tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। देखो जी, ये बना दिया जी, ये फाई है, ये ओमेगा एल है, ये आर है, ये जेड है। कल बताया था ए प्लस जे बी का मैग्नीट्यूड कितना? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फेस कितना? ए जे tan इनवर्स बी बाई ए, तो हो गया जे फाई। फाई कितना है? tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। लिख दिया। तो इसको ये लिख दूँ, देखो V0 ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज ई रेज़ टू पावर जे फाई। हो गया लो फाई। ये लो जी, करंट आ गया। करंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हैज बीन ऑब्टेन्ड। आई टी क्या हो गया? V0 ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी माइनस फाई अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल। इसको जाकर चेक कर लीजिए। इवन इफ यू वुड हैव वर्कड आउट अ डिफरेंशियल इक्वेशन देन आल्सो सेम सॉल्यूशन वुड हैव बीन ऑब्टेन्ड। Magnitude of this is V is continuous at any point of the magnitude V by Z। V by Z क्या लिखा? V by Z। V0 raised to this is आ गया करंट। V0 raised to Z। Current is lagging by the phase of phi because circuit is inductive। If this would have been purely inductive, R को जीरो कर देता तो हो जाता ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। करके देख लो, R को अगर जीरो कर देता तो हो जाता ओमेगा एल। R को जीरो कर देता यहाँ तो जे ओमेगा एल हो जाता, सिंपली जे ओमेगा टी माइनस पाई। बट आर इज देयर, दैट इज व्हाट इज लैगिंग बाई फाई, जे ओमेगा टी माइनस पाई। गुड गुड। आई निकल गया, आई निकल गया। पावर कितनी थी सर्किट में? कुछ नहीं करना था, पावर निकाल दिया था। किसी भी टाइम में निकालना था। वी इंटू आई, वी इंटू आई। वी है V0 ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी है I0। इसको कह देता हूँ, देखो देखो भैया, इसको I0 कह सकता हूँ कि नहीं? देखो IT इज VT, ये VT है, क्या है? V एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, ये ना। IT इज VT बाई दिस, I0 इज V0 बाई दिस, IRMS इज VRMS बाई दिस, I एवरेज इज V एवरेज बाई दिस। फिनिश्ड। लिख दीजिए P इज VI, P इज VI। सो हो गया, कितना हो गया जी? V0 I0, ये है साइन ओमेगा टी, समझ लीजिए, और ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस फाई। साइन है कोसाइन कुछ भी लिख दीजिए। दिस इज पी एट एनी टाइम। बार बार करने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड डेरिवेशन किया था। पावर के लिए मैं स्टैंडर्ड कर देता हूँ। समझ लीजिए V0 ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी विच कैन बी ऑलवेज रिटन एज V0 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। चाहे साइन लिख दूँ चाहे कॉस लिख दूँ। आई इज द रिस्पॉन्स। आई कैसा होगा जी? I0 ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी माइनस फाई और प्लस पाई। माइनस पाई इंडक्टिव, प्लस पाई कैपेसिटिव, विच आई कैन ऑलवेज राइट I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एनी सर्किट, एनी ऐसी सर्किट। दिस इज V0 रेफरेंस लेवल, दिस I0, I0 इज द रिस्पॉन्स, दिस इज द रिस्पॉन्स। V बाई जेड करके निकाल दिया। I0 इज दिस, इज द पावर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर।
पी टी इज व्हाट, वी आई, कुछ नहीं है जी, वी जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस प्लस पाई। आई विल नॉट रिपीट, वी जीरो आई जीरो, ये हो गया। कल भी किया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस पाई प्लस माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इसको ओपन कर दिया, साइन ओमेगा टी कॉस पाई कॉस ओमेगा टी साइन पाई, 12th क्लास का डेरिवेशन था, आगे करके चले गए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस पाई प्लस माइनस दिस पी टी है। एवरेज वैल्यू आई विल ऑलवेज कैलकुलेट, दिस एक्चुअल पावर, एवरेज पावर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर द फुल साइकिल इज हाफ, सो इट इज नथिंग, हाफ वी जीरो आई जीरो कॉस पाई, वो जीरो है। एवरेज पावर इन एनी एसी सर्किट इज वी जीरो आई जीरो कॉस पाई। एनी सर्किट वी जीरो आई जीरो कॉस पाई, गुड। किसी भी सर्किट में, तो आर एल सर्किट में भी है ये। यहाँ पर फाई मालूम पड़ गया, फाई क्या आता है यहाँ पर बताओ, इस सर्किट में फाई क्या है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज फाई, ये क्या है जी, ओमेगा एल है, ये है आर, कॉस पाई कितना हो गया जी, ये है कितना, ये जेड है, इसी को जेड बोलते हैं, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। कॉस पाई क्या हो गया, आर बाई जेड, आर बाई जेड रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा। पावर कितनी हो गई भैया, व्हाट इज द पावर हियर, एवरेज पावर क्या हो गई जी, हाफ वी जीरो आई जीरो कॉस पाई। आई जीरो कितना है जी, वी जीरो बाई जेड है, तो क्या हो गया जी, वी जीरो स्क्वायर बाई टू, जेड कितना जी, रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, कॉस पाई कितना, आर अपन रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, कितना हो गया भैया, जो चाहो सा, वी जीरो स्क्वायर आर बाई टू आर स्क्वायर, गुड। वी जीरो स्क्वायर आर अपन टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एल स्क्वायर, दिस इज द पावर इन द सर्किट। करेक्ट, क्या क्या निकाल दिया, करंट निकाल दिया, पावर निकाल दिया, पावर फैक्टर निकाल दिया। पावर फैक्टर कितना था, लिख दिया कॉस पाई, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, 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 बताओ, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। when there could be maximum power factor, power factor maximum कब हो सकता है, 1, cos pi is 1, phi is 0, 0 कब हो सकता है बताओ, 1 कब हो सकता है cos pi, when cos pi could be 1, बताओ, when cos pi could be 1, वो जो लिखना था लिख दिया, समझ में आ गया भाई साहब। पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, cos phi मैक्सिमम इज 1, 1 के लिए दोनों को 1 होना चाहिए, then only it will be 1, then only it will be 1। चलिए, this is all about calculation, this is called choke coil, this is the principle behind choke coil, it is used in AC circuits for series LR circuit, is used as a choke coil, only inductance is used for regulating the current। करंट कितना था जी, करंट कितना है सर्किट में, V बाई रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओमेगा चेंज करके आई कैन रेगुलेट द करंट, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल सर्किट, बाय द हेल्प ऑफ दिस करंट कैन बी रेगुलेटेड, V बाई रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इज ए चोक कॉइल, चोक कॉइल इज नथिंग हैविंग ओनली इंडक्टेंस L, फिक्स्ड है, रेगुलेट कर सकते हैं कि नहीं, ओमेगा चेंज करके चेंज हो सकता है कि नहीं, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, करेक्ट, दिस आर एल सर्किट। एल आर सर्किट कैन बी यूज एज एन इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर सर्किट,
series LR circuit can be used as an integrator or differentiator, but only in AC, not in DC. AC LR circuit can be used as an integrator or differentiator. बताएंगे जी क्यों. चलिए सीरीज RC सर्किट, RC V0 e raised to power j omega t. सर्किट इज कंप्लीट करंट फ्लोज. अगर इक्वेशन लिखता तो सिंपली लिखता आई आर प्लस क्यू बाई सी इज वी. सॉल्व. आई वैसे आराम से आ गया. व्हाट इज आई? वी बाई जेड. वी बाई जेड. V0 e raised to power j omega t upon z. What is z? R plus 1 by j omega c. They are in series. It becomes R plus 1 by j omega c, which is nothing. V0 e raised to power j omega t R minus j upon omega c, which is nothing. V0 e raised to power j omega t root R square plus 1 by omega square c square. ये क्या हो गया जी? e raised to power माइनस जे फाई. फाई क्या है? tan इनवर्स 1 बाई ओमेगा सी बाई आर. यहाँ लिख दिया जी. दिस इज आर, दिस इज 1 बाई ओमेगा सी, इट इज फाई. कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया ए प्लस जे ओमेगा V0 e raised to power j omega t. क्या होगा? j ओमेगा t प्लस पाई. ये बना दिया सर्किट. दिस आई आर, दिस 1 बाई ओमेगा सी, क्योंकि देखो r माइनस जे बाई ओमेगा सी है. ये कॉम्प्लेक्स है. y एक्सिस कॉम्प्लेक्स है, x एक्सिस रियल है. r माइनस जे बाई ओमेगा सी. This becomes root R square z. देखिए क्या हो गया जी. I becomes what? What is I? V0 e raised to power j omega t plus phi upon root R square. This is the current at any point of time. I0 is V0 by Z. This is I0, V0 by Z. IRMS is VRMS by Z. This is VT. V at any t divided by magnitude of Z. V0 e raised to power j omega t plus phi. IRMS, VRMS by Z. I0, V0 by Z. I average, V average by Z. IT, VT by Z. Current is obtained. पावर वही है जो लिखा मैंने. V0 I0 cos phi, हाफ V0 I0 cos phi. cos phi यहाँ से निकाल दिया गया. cos phi निकाल दिया है मैंने, आपको लिख दिया. phi बता दिया. cos phi you can get. That is RC circuit. This is RC circuit. Whether it is RL circuit or RC circuit, both of them can be used as an integrator or differentiator. AC मालूम पड़ गया भाई साहब. पहले पूरा रिस्पॉन्स एक लाइन में हाँक दिया है. एक लाइन में करेक्ट. कैसे हाँका एक लाइन में? कि मैंने सर्किट का एनालिसिस करना सिखा दिया है कि करंट कितनी है, रिस्पॉन्स क्या है. सोर्स में V लगा हुआ है, रिस्पॉन्स में I करंट निकालना है, पावर निकालनी है और पावर फैक्टर निकालना है. तीन चीज़ें निकालनी है. तीनों निकाल दिया, सर्किट खत्म. उसके बाद उसका एप्लीकेशन होता है क्या है? वेदर इट इज RL सर्किट का एक एप्लीकेशन क्या बताया? चोक कॉइल. चोक कॉइल इन AC सर्किट्स डिवाइस टू रेगुलेट करंट. देन सेकंड एप्लीकेशन ऑफ RL सर्किट और RC सर्किट आई हैव सेड दैट यूज्ड एज एन इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर. लिखने से एक नंबर नहीं दूंगा, 0 मार्क्स दूंगा. When I am saying both the circuit can be used an integrator or differentiator, there has to be something important into that. There has to be some condition.
at what time, at which way they have to be used as an integrator or differentiator. Good. और AC सर्किट ही नहीं, किसी ट्रांजिस्टर को भी बना सकता हूँ कि मैं कहूँगा ऑपरेशन हम इस बार पूछ दिया मैंने, हर बार बताओ इस बार दिस टाइम टेस्ट इज आई आस्क्ड हाउ एन ऑपरेशन एम्पलीफायर कैन बी यूज्ड एज एन इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर. ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन बी यूज्ड एज एन इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर. गुड. क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है. पहली बात, सोर्स जो है फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए. सोर्स मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट शुड फ्लक्चुएट एट every time, then only integration or differentiation is having meaning. If it is a constant dv by dt and dv vi dt does not have integration does not have any meaning. समझ में आ गया? शुद्ध जीरो दिया था मैंने किसी बार अभी काट के कि कोई मूर्ख आदमी ने क्या बनाया, बैटरी बना दी. मैंने देखा नहीं, काटा और जीरो दिया. मैंने कहा बंद दिमाग, तुझे यूपीएससी पास नहीं होने देगा कभी. समझ में आया क्या कह रहा हूं? यूपीएससी बहुत बार बंद दिमाग लोगों को, अगर ये एहसास हो गया कि दिमाग इसका बंद है, 25 साल की उम्र का बंदा है और इसका दिमाग बंद है, यूपीएससी क्या करेगा? तुमको एग्जाम पास होने नहीं देगा. ये ध्यान रखना, बड़ी बात बता रहा हूँ. इसलिए जब किसी का बहुत खराब नंबर आता है ना, फिजिक्स लगता है मुझे आती है, तो मैं कहूँगा बेटा क्या कर, पेपर लिख के ला पूरा, और मैं कहीं ब्लेंडर ढूंढ देता हूँ, ब्लेंडर, जिससे मालूम पड़ जाए कि क्या है, तुम्हारा दिमाग बंद है, दिमाग नहीं चलता. बस ये एहसास हो गया एग्जामिनर को इसका दिमाग नहीं चलता, मतलब कहीं पर भी इंपॉर्टेंट जगह बैठेगा तो कबाड़ा करवा देगा देश का, इसका दिमाग ही नहीं चलता है, सुन्न हो जाएगा इसका दिमाग. समझ रहे हो? स्ट्रेस एग्जाम स्ट्रेस लाइक कंडीशन है ना, तो वार और जब भी बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं वो भी स्ट्रेस लाइक कंडीशन है. दे आर आल्सो स्ट्रेस लाइक कंडीशन. एग्जाम भी इज आल्सो स्ट्रेस लाइक कंडीशन. सो मेनी टाइम्स इन लाइफ यू फेस अ सिचुएशन वेयर देयर इज स्ट्रेस एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन. तो कभी भी एसी सर्किट में सिर्फ एसी सर्किट इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर हो सकता है, डीसी सर्किट हो नहीं सकता. इसलिए कब गलती से बैटरी मत लगा देना. पूरा डेरिवेशन कर दिया, बैटरी लगा दी, पूरा डेरिवेशन कर, रट के बैठा था, मैंने कहा रट के बैठा है लेकिन बंद दिमाग का आदमी है, काट के जीरो दिया. मैंने एक बार सुप्रीत सिंह गुलाटी को भी जीरो दे दिया था काट के, समझ रहे हो, जबकि 138-40 नंबर दिए थे टेस्ट पेपर में, और उसको काट के मैंने कहा आई डू नॉट एक्सपेक्ट दैट मिस्टेक फ्रॉम यू, आई कैन एक्सपेक्ट दैट मिस्टेक फ्रॉम एनीबडी. उसने क्या किया था, सर्किट को, किसी चीज़ को शिफ्ट कर दिया था स्केल. आई हैव गिवन समथिंग एंड मैथमेटिकल सोल्यूशन वाज डिफरेंट. इफ यू चेंज द स्केल देन द सोल्यूशन इज डिफरेंट. विल डेमोन्स्ट्रेट इन क्वांटम मैकेनिक्स में किया था. मेरे पास अभी भी आंसर शीट रखी हुई है, व्हाट ही डिड, आप आज तक प्रिजर्व करके रखी हुई है. उसने अपने नोट्स पे भी शेयर कर दी थी वो आंसर शीट. मैंने काट के जीरो दिया था. मैंने कहा आई डू नॉट एक्सपेक्ट दैट मिस्टेक फ्रॉम यू. चलिए, हाउ इट व्हेन इट इज यूज्ड एज एन इंटीग्रेटर और डिफरेंस. इंटीग्रेटर मीन्स आउटपुट. देखिए, इफ आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटर सर्किट. आउटपुट अब टाइम के रेस्पेक्ट में है, डी बाई डी टी ऑफ इनपुट. व्हाट इज डिफरेंशिएटर? दिस इज डिफरेंशिएटर सर्किट. इफ आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू d by dt of input, that means input must be also function of time, output should also be function of time. So if I say output voltage है and it is proportional to dvi by dt, vi is the input voltage जो लगाया हमने, v0 sin omega t. If vo is proportional to dvi by dt, then it is a differentiator. कहीं पर भी किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हैं. इफ आउटपुट इज, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट, डी बाई डी एक्स नहीं है, डी बाई डी टी है क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट पे. वी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सो डी बाई डी टी ऑफ दिस. प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करूंगा, कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, के डी दैट इज ए डिफरेंशिएटर. इंटीग्रेटर में क्या करना है, आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट. चलिए आप बताइए कौन से सर्किट को करके, दो बोथ ऑफ देम कैन बी यूज्ड, ओनली कंडीशंस आर डिफरेंट. कौन से को यूज करके दिखाऊं, जल्दी बोलो यार. आरएल सर्किट, सीरीज एलआर सर्किट. ये इनपुट है, ये आर है और ये क्या है, ये एल है. डिफरेंशिएटर बना दिया. ये इनपुट है,
ये इनपुट है वी आई, इज वी आई एज ए फंक्शन ऑफ टी, क्या लगा रखा है वी जीरो साइन ओमेगा टी, जो ओमेगा टी कुछ भी लगा दिया, फंक्शन ऑफ टाइम है। गुड गुड, वी आई वी आई, अभी भी किसी ने कुछ वी आई, सो व्हाट इज वी आई? वी आई क्या है? वी आई मस्ट बी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, यही होगा ना? वी आई इज वी आर प्लस वी एल, दिस इज वी आर, दिस इज वी आर। सीरीज सर्किट, सेम करंट इज आई, सेम करंट here is आई। गुड, if I take tap output across this, इसके across output ले लूँ, if I say measure the potential drop across L, what is VO? अगर मैंने VO इसके across दे दिया तो क्या हो गया? L di by dt। If I take, how I am making differentiator, if I take output across L, input is this, both of them are in series, same current is flowing, I is here, L di by dt. Good, this is VR. What is VR? VR कितना है? I into R है। I क्या हो गया जी? I क्या हो गया जी? VR by R हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये क्या हो गया जी? L by R dVR by dt. Good. If I tap output across L, then what is the potential across L? L by R dVR by dt. Correct? I am getting differentiation of VR. But if VR becomes VI, then it is differentiated circuit, otherwise not. है ना? और VI है क्या? VR plus VL. अगर मैं इसको ये लिख दूँ कैसे भी, L by R तो कांस्टेंट है। If I can write dVi by dt is a differentiator circuit, L by R is a constant, dVi by dt, I have got output as the differentiation of input। आ गया कि नहीं आ गया? But when VR is VI, वो कंडीशन है VI is VR plus VL, when VI can be approximated to VR, VI कब इसके बराबर हो सकता है? VL is very small, देखो जी दो है, वहीं से आंसर है, VL is very small। बोलो भैया, VI is VR plus VL, and if this is dVR by dt, I can write is dVi by dt provided VR is VI। When VI is VR, when VL is high नहीं, VL is very low, VL is neglected, negligible। अरे ये इसके बराबर तो जीरो होना है कि नहीं होना है? VL is very very less as compared to your VL। गुड, जीरो तो नहीं है, वेरी वेरी लेस। VL है क्या? I into ओमेगा L, VL कितना है? सेम I। नीदर L कैन बी चेंज, नॉट R कैन बी चेंज, व्हाट कैन बी चेंज? ओमेगा। ये सिर्फ ओमेगा बदल सकता हूँ इसका, ये ओमेगा बदल सकता हूँ यहाँ पर। आई कैन चूज द सोर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई विल गिव द आंसर कि आंसर क्या है। डायग्राम आंसर नहीं है। एक this is L di, so omega L, I omega L is this I R, I कट गया, ओमेगा क्या हो गया? वेरी वेरी लेस देन R by L, ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन R by L, F frequency 2 pi R by 2 pi L। So when the frequency of source is so chosen, frequency of the source is so chosen, if frequency of the source, I can choose the source in such a way that frequency is R by 2 pi L। frequency आ जाएगी यहाँ से, F is less than R by 2 pi L। If under this circumstance, when omega is very very less than R by L, टाइम पीरियड के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, दिस इज 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड सर्किट इज L by R हो जाएगा। So omega is very very greater than R by L. R and L are the characteristic I cannot change. What I can change? Only frequency of the source. Source can be chosen in such a way, this way, and output is taken across L. Then it is acting as a differentiator circuit. So this condition is important.
दिस कंडीशन विल मेक इट ए डिफरेंशिएटर सर्किट, करेक्ट। और उल्टा कर दूँ तो इंटीग्रेटर हो जाएगा। इंटीग्रेटर 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 के लिए क्या करूं, ये एल है और ये है आर, ये लो जी, ये लगा दिया था वी आई, ये वी आई लगा था, तो वी आई क्या है जी, वी एल प्लस वी आर है। आउटपुट इज टेकिंग अक्रॉस आर, वी ओ क्या हो गया जी, आर आई हो गया। वी ओ कितना हो गया, सीरीज में है दोनों, इसमें भी आई है इसमें भी आई है। इफ आई टेक द आउट, उसमें एल के अक्रॉस लिया था, हियर आई टेकिंग द आउटपुट अक्रॉस आर, टैप द पोटेंशियल अक्रॉस आर, क्या हो गया आर इंटू आई। गुड। व्हाट इज वी एल, वी एल कितना है जी, एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इज वी एल बाई एल। आई कितना है, इंटीग्रेशन वी एल डी टी बाई एल है, क्या आ गया जी, आर बाई एल इंटीग्रेशन वी एल डी टी। If I get the output across R, आंसर ये है when it is a integrator circuit, output is taken across R, then it will become I into R. And what is I? VL is L di by T, where VL is the potential drop across L. यहाँ से I आ गया इंटीग्रेशन VL dt by L, ये हो गया R by L, VL by dt, R by L is a constant quantity, correct? When it will be an integrator, when this is equal to VI dt, ये VI कब होगा उसके बराबर, VI कब VL होगा, when VR is very very small as compared to VL, मतलब R is very very less than ओमेगा L, मतलब ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R by L। उल्टा था ना, देखो रिवर्स था, वो रिवर्स कंडीशन थी, वहाँ पर तो ओमेगा वाज वेरी वेरी लेस देन R by L था, आउटपुट वाज टेकन अक्रॉस L। तो व्हेन इट इज एन इंटीग्रेटर सर्किट, व्हेन आउटपुट इज टेकन अक्रॉस R, फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज चोजन टू बी वेरी वेरी बिग देन R by L, then LR सर्किट कैन बी यूज्ड एज एन इंटीग्रेटर सर्किट। सो यूज किया जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैसे यूज किया जाना क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अभी मैंने कॉपी जाती है काट काट के जीरो दे दिया है, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे बना दिया है, नथिंग। इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर सर्किट, व्हाट इज द लॉजिक, आई हैव एक्सप्लेन लॉजिकली एग्जैक्टली सेम वे। आरसी सर्किट कैन बी, दे आर इन टर्म्स ऑफ ऑल टाइम पीरियड्स। टाइम कांस्टेंट सर्किट की R by L टाइम कांस्टेंट था ना, इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट आई हैव रिटन फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स, frequency of the source, if it is written in terms of time constant of the circuit, R and L are the characteristic of the circuit, only I can change the source, correct? समझ में आया भाई साहब? अगर सारे क्लास में मूर्ख आ जाएं तो टीचर को भी मूर्ख ही होना पड़ेगा, समझ गए? मेरा जैसा टीचर थोड़ा चलेगा यार, तुरंत रिजेक्ट कर देंगे तो टीचर बेकार है, कैटर ही नहीं कर पा रहा लोगों को। लेकिन मेरा क्या है, मेरा तो रेस्ट्रिक्शन है कि आई टीच, I do not want to teach to the masses, crowd ही नहीं है, मास का टीचर ही नहीं हूँ। I have never had the intention that I want to be teacher of masses। समझ में आया भाई साहब? मेरी क्लास में हमेशा से जब मैंने पहली बार गेट को पढ़ाना चालू किया तब भी टॉपर ही आए थे और सारी क्लास पास हो गई थी। गेट और नेट और JRF के एग्ज़ाम में मैंने 2007 में पहली बार JRF पढ़ाना चालू किया और जितने कोचिंगों थे उनके बेस्ट क्राउड मेरे पास उठ उठ के अपने आप ही आ गए। और मैंने ऐलान करके रखा था कि बेस्ट क्राउड ही मेरे पास आएगी, क्योंकि मूर्ख आएगा भी तो भगा दूंगा। मैंने क्लास में कहा था अगर मूर्ख आ भी गया तो मैं क्या करूंगा, भगा दूंगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन ही नहीं है। मेरा इंटेंशन क्या है, पास कराना है। जब मैं बैच चला रहा था तो मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि चाहे 5 पढ़ने आवे 5, और मैं उनको पढ़ा दूंगा तो अगली बार मेरे पास खूब लोग आ जाएंगे। मेरे पास एक ही क्राइटेरिया है पढ़ाने का। समझ रहे, जब मैं पढ़ा रहा था मैंने एकदम अपने अगल बगल वाले लोगों को क्राउड खींच दिया था। अभी जैसे प्रीलिम्स पढ़ा रहा हूँ मैं, जब 100 एडमिशन हो जाए 30 को पास करा दूंगा। मेरा फोकस ज़्यादा एडमिशन है ही नहीं, 10 हो गए, 10 आ गए, 3 पास करा दूंगा, फिनिश्ड। 30% सक्सेस रेट है। फाइट करते रहो, प्रीलिम्स नहीं पास करोगे। मेरे पास 10 अगर आ गए तो 10 में से 3 को पास करा दूंगा। ये मैंने अपना इंटेंशन, ज़्यादा पास हो जाए बहुत अच्छा है, 30% कम से कम पास हो जाना चाहिए। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है जिसको रोल नंबर दिया ना 25010001 25022, उसमें से 10 अगर इनरोल्ड है 30% सक्सेस रेट हो जाए। तो मेरा फर्स्ट टाइम इंटेंशन था
तो इस प्रोसेस में क्या होता है, मूर्ख को नहीं बुलाना होता है। जब बड़ा कोई ऑब्जेक्टिव ले लो तो उसमें टारगेट ही नहीं होता है मूर्ख आए, उसमें टारगेट ही नहीं होता है कि मूर्ख आए, क्योंकि उसमें टारगेट क्या होता है, वो क्राउड आए जो पास हो जाए। तो मैं हमेशा से इसी इंटेंशन के साथ पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कम नहीं करता। मुझे जो पढ़ाना था मैंने खत्म कर दिया। आज तक मुझे आज यहीं तक शुरू में बेकार के टॉपिक पढ़ा दिए, नहीं तो एलसीआर भी खत्म कर देता, सीरीज एलसीआर भी खत्म कर देता। अब कल क्लास में करेंगे, कल तो है ना, कल खत्म हो जाएगा। कौन सी क्लास थी आज? थर्ड थी, थर्ड ही है ना, कल फोर्थ है, टाइमली है, गुड। कल पूरी सीट खत्म, पूरी सीट खत्म हो गई। अभी भी आप देख सकते हो कि 70% सीट खत्म हो गई, सीट नंबर 17, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सीरीज एलसीआर सर्किट एंड पैरेलल एलसीआर सर्किट। लेकिन डीसी के खत्म हो गए सारे, ऑल क्वेश्चंस ऑफ डीसी, ऑल क्वेश्चंस ऑफ आरएल सर्किट, ऑल क्वेश्चंस ऑफ आरसी सर्किट, ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स are finished, because according to me it will not take more than 10 minutes to solve the entire sheet, only when I need to do LCR circuit in AC, series circuits and parallel circuits. Good, class is concluded. किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है, अच्छा किसी को कुछ नहीं पूछना है, कितना अच्छा है, अच्छा ये किसी को कुछ नहीं पूछ रहा है। किसी को अगर पूछना हो तो बाद में भी पूछ सकते हो, ऐसा मत सोचो कि क्लास में पूछना है, क्लास के बाहर भी पूछ सकते हो। ये मत सोचो कि आई डू नॉट डिस्करेज, आई इनकरेज आस्किंग क्वेश्चंस, बट क्लास हैज़ गॉट इट्स ओन स्टैंडर्ड। क्योंकि मेरे हिसाब से क्लास चार क्लास की, आपके हिसाब से थोड़ा है, मेरे हिसाब से कल ख़त्म हो जाएगा, कल के बाद मैं फ्री हूँ, चैप्टर ख़त्म, नेक्स्ट वी विल गो फॉर दिस। क्योंकि डेडलाइन क्या है, 4 अगस्त तक ये कोर्स ख़त्म होना है। 4 अगस्त, अकॉर्डिंग टू माई माइंड सेट, 4 अगस्त आई विल बी टीचिंग थर्मोडायनेमिक्स, 5 से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, 4 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा। तो मेरी अभी तक प्लानिंग ऐसी है कि 4 तारीख तक खत्म हो जाएगा। टेंटेटिवली आई प्लान्ड टिल 4th ऑफ अगस्त 3 courses are over. 5th August onwards I am going to start with thermodynamics. 25th August thermodynamics is over, I am going to start with paper 2.